Hello, everybody. Good afternoon. I'll just wait a few moments if anybody's joining, and then we'll start. Please let me know if you're here and who is it. I hope all of you are doing fine. It's been a while that we all met in the live free class. And we'll be talking about one of the most important nonfiction writers that we've had in English literature, which is Francis Bacon, and specifically one of his essays, which is Of Studies. I had already covered one of his essays in a previous session. All right, then. Good afternoon once again. Today, we are about to embark on a journey, not just into the words of a page. It's not just about the text, the written text on the page, but into the mind of one of the most extraordinary thinkers of the world that the world has ever seen or known. And his name is Francis Bacon. Now, picture England in the hello, Astha, I'm good. How are you? Good afternoon. Good to have you. So, I want you to picture England in the late 16th century. कैसा रहा होगा? एक बहुत एम्बिशियस टाइम था, एक बहुत डिस्कवरी वाला टाइम था ना, इंट्रीग वाला टाइम था, शेक्सपियर का टाइम था और जो पूरी हवा थी ना, इट वाज थिक विथ पोएट्री. पीपल लव्ड पोएट्री. किसी और फॉर्म को तो कुछ मानते ही नहीं थे. तो पीपल लव्ड पोएट्री. जो कोट्स थे, दे वर बज्ड विथ प्लॉट्स, and the thirst for knowledge, it burned in the hearts of men and women alike, because Renaissance ka time tha. I miss all of my students. You should have come back. Right. Renaissance के टाइम पे आपको पता है that the new man, learning, knowledge, curiosity, ये सब सेंटर में थे. And that's why the air was all thick with the want of knowledge. Right. Now, into this world, in 1561 पैदा हुए फ्रांसिस बेकन. अपने घर में सबसे छोटे, निकोलस बेकन के बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से सबसे छोटे ये थे. एंड ही वाज बोर्न इन अ फैमिली व्हिच वाज ऑलरेडी स्टीप्ड इन पॉलिटिक्स एंड लॉ. पूरी फैमिली ऑलरेडी थी उस साइड, पॉलिटिक्स में, लॉ में. इनके जो फादर थे, बिकॉज वो एक लॉर्ड कीपर थे, ग्रेट सील के लॉर्ड कीपर. इट वाज अ बिग थिंग. अ मैन हुज माइंड वाज वेरी शार्प. जैसे उनके एम्बिशंस बहुत शार्प थे. उनके फादर, फ्रांसिस बेकन के फादर, और उनकी जो मदर थी, एन कुक, शी वाज अ वुमन ऑफ रिमार्केबल इंटेलेक्ट. तो अब जिस घर में मदर फादर इतने इंटेलेक्चुअली आउट गोइंग हो, तो नेचुरली द इन्वायरमेंट ऑफ द हाउस इज गोइंग टू बी वेरी गुड, राइट? तो मदर बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल थी. उनका जो नॉलेज था ना लैंग्वेजेस का, लर्निंग का, that would shape young Francis in ways that echo even today. तो अब इमेजिन करो एक ऐसा लड़का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हॉल्स में चल रहा है, एक बहुत छोटी एज में, एट द एज ऑफ 12. एक ऐसा लड़का जिसकी आंखें were not just on the books. उनकी आंखें पूरी दुनिया पे थी. It was on the world itself. He was so good with observing things. And he absorbed knowledge like a sponge. Sponge को आप पानी पे रखो तो कैसे
पूरा पानी ले लेता है ना, बस वैसे ही थे फ्रांसिस बेकन। जहाँ नॉलेज मिला, वहाँ ले लिया। Name it, philosophy, law, classics, everything. And he also understood, even then, the knowledge without application is what? Is like a candle hidden under a jar bell. जब आपके पास नॉलेज आ गया, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा है? तो बेकन की जो लाइफ़ थी ना, इट वाज़ नॉट अ स्मूथ पैसेज, ठीक है? ही वाज़ फ्रॉम अ वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग फैमिली. He stepped into the द tumultuous वर्ल्ड ऑफ एलिजाबेथन पॉलिटिक्स, जहाँ पे ये पूरी इन्वायरमेंट एलिजाबेथन एज का बहुत स्टिमुलेटिंग था, बहुत इंटेलेक्चुअली रिच था. वहीं पे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा थी. Navigating the labyrinth of ambition, intrigue, and occasional betrayal. Yet, through it all, he never lost his fascination with the human mind, the workings of nature, or the possibilities of learning. उससे इन्होंने अपना कभी भी अ, जो था इनका नज़रिया वो नहीं छोड़ा. He faced trials, you know. अच्छा, before that, he would rise to become Attorney General also, Lord Chancellor. Father क्योंकि पॉलिटिक्स में थे. Hello Vinaya, good afternoon. I'm good. How are you? A long time, yes. So I thought कि आज live चलते हैं. I've missed all of you so much, all of your comments and all of yours interactive spirit. Be in touch. Okay, coming back to Francis Bacon, um, he also, would become Attorney General, Lord Chancellor, and yet इनकी जो personal life थी ना, उसमें बहुत सारे trials और disappointments इन्होंने face की. Humbling reminders that even the brightest minds walk the same human terrain of triumph and failure as the rest of us. हमें सिर्फ वो दिखाई देता है ना, उनका ट्रायम्फ दिखाई देता है, वो कितने बड़े इंसान बन गए, वो दुनिया के जब हम एसेज का नाम लेते हैं तो सबसे पहले फ्रांसिस बेकन का नाम लेते हैं. वी डोंट टॉक अबाउट the trials, the disappointments, the failures that each and every one of them have faced. But here's the magic. Bacon took all of it. Knowledge, ambition, failures, victories. और ये एक ऐसा बंदा था ना, इसने पूरा इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक विजन में that would shape modern world, modern thought. He taught us that essays are not mere exercises in words, they are instruments for exploring life, for understanding the mind, for daring to question the world around us. And he did all of this जब poetry अपनी peak पे थी, ड्रामा अपनी पीक पे था. इट वाज द गोल्डन टाइम फॉर द ड्रामा. और उनमें से एक निकल के आया जो हमें एसेज दे के चला गया. दिस इज द पावर ऑफ विल. दिस इज द पावर ऑफ not giving up. In fact, turning all of your trials and tribulations into something, into a vision that would shape modern thought. And so, as we open his essay today, remember that you are not just reading an old text, you are actually conversing with a man who believed that learning is a light and that to study, to think, and to reflect is nothing less than a moral obligation. So lean in, और बहुत छोटे छोटे essays हैं. Read closely. And dare I say it, seize the wisdom that lies before you. Don't just read the words. Take something from it. Be a sponge like Francis Bacon. जो मिल रहा है वो बस अपने अंदर ले लो. Take that wisdom, seize it, as Francis Bacon himself once seized the world. Right? Okay, let's move on to talk about his essay. Otherwise, मैं तो बह जाऊंगी. Here, let me take you to the slide of studies के बारे में हम आज बात. Let me also open the essay for you. Wait. Here, let me show you. इससे पहले कि आप लोग डर जाओ कि कितना बड़ा है. बस ठीक है, इसी पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आज.
ये है बस। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी, तीन करते हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं। फ्रांसिस बेकन 1561 से 1626, नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, एक फिलोसोफर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, साइंटिस्ट भी थे, एंड द एसेइस्ट ऑफ एलिजाबेथन जेकोबियन एज। ठीक है, इनके जो एसेज थे, ठीक है, कोई बात नहीं रिंकू, गुड आफ्टरनून। इनके जो एसेज थे फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1597। 1597 में जो ये एसेज आए उसको उन्होंने रिवाइज किया, एक्सपैंड किया, 1612 में 38 एसेज डाले और फाइनली 58 एसेज आए 1625 में। प्लीज रिमेंबर द डेट, स्पेशली नेट वालों। ना दे आर फेमस फॉर व्हाट? एफोरिस्टिक स्टाइल। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, मेंस के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं एंड नेट के एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए ये फेमस है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन एफोरिस्टिक स्टाइल? एफोरिस्टिक स्टाइल जिसमें एफोरिज्म्स हों, शॉर्ट, वेरी क्लेवर, कुछ बहुत मेमोरेबल स्टेटमेंट्स जैसे फ्रांसिस बेकन ने दी हैं, जो एक जनरल ट्रूथ बताए या कोई एक प्रिंसिपल बताए। ठीक है, तो विटी, कंसाइज, ट्रूथफुल, वेरी वाइज, वेरी मेमोरेबल, इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को हम कहते हैं aphoristic style, which Francis Bacon had. Yes, correct. With maxims, short and quirky. ऑफ स्टडीज की बात करें तो ये पब्लिश हुआ था 1597 में, पहले वाले में, उस एडिशन में एज वन ऑफ बेकन्स अर्लीस्ट एसेज, एंड इट वाज देन लेटर रिवाइज्ड एंड पॉलिश्ड 5 edition also. It is among his most widely read essays because it reflects his philosophy of knowledge, education and practical life. पूरा जो इन्होंने नॉलेज लिया वो हम सबके साथ बांटा। इस ऐसे में बेकन ने रेनेसां का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ह्यूमनिज्म, उसको हाईलाइट किया है, वैल्यू कर किया है लर्निंग को, इंक्वायरी को, क्रिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए विद अ प्रैग्मेटिक फोकस, कि नॉलेज जो है इट शुड नॉट जस्ट एनरिच द माइंड बट इट शुड ऑल्सो सर्व प्रैक्टिकल लाइफ, पॉलिटिक्स, ऐसा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे कई बार हम क्वेश्चन करते हैं ना कि लेट्स से आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा और मैथ्स के कुछ बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ी, आप कहोगे अप्लाई करने वाली हूँ अपनी रियल लाइफ में, मुझे तो सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो वो वाली चीजें ऑफ कोर्स अगर आप फर्दर ऑन उस फील्ड में जाते हो तो काम आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी कम हो जाती हैं। सो नॉलेज शुड बी लाइक दैट which serves practical life also, politics also and morality also. What is the purpose of this essay? His essay aims to show the uses, number 1, number 2 abuses and number 3 effects. स्टडी, पढ़ने के क्या यूजेस हैं, पढ़ने के अब्यूज भी हैं भाई, और उसके क्या इफेक्ट हैं। एंड ही बैलेंसेस द वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट with their possible limitations, guiding the reader on how best to approach learning. कैसे पढ़ना है, तो आप सबके लिए बहुत काम की चीज होने वाली है, ध्यान से सुनिए। कैसे पढ़ना है फ्रांसिस बेकन बताएंगे। हम इस ऐसे को ना, छोटा सा है वैसे तो ऐसे, लेकिन फिर भी डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर पार्ट्स में। सबसे पहले द यूजेस ऑफ स्टडीज, जिसमें फ्रांसिस बेकन 3 मेन बेनिफिट्स हमने फर्स्ट लाइन में ही देखा, बताते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं पढ़ने के? डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। तो एक तो मजा आता है पढ़ने में, डिलाइट फील होता है, रीडिंग एंड लर्निंग, वो हमें एक इनर सेटिस्फैक्शन देती है, और अगर वो नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो। सी सबसे पहली जो हमारी क्लास होती है, आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं पहली चीज आप सबको क्या कहती हूँ कि एग्जाम के बारे में छोड़ के अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ो, कि आपको मजा आए वो पढ़ने में। आप राइटर को पढ़ रहे हो, आप जानते ही नहीं राइटर को, तो आप क्या एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे? इसीलिए तो अभी हमने सीधा ऑफ स्टडीज से शुरू कर सकते थे, लेकिन पहले फ्रांसिस बेकन को एज अ पर्सनालिटी जानना जरूरी है ना, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे। तो डिलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्सनल प्लेजर मिलना चाहिए, स्पेशली आप अकेले बैठे हो, आप पढ़ रहे हो कोई चीज, उसमें मजा आना चाहिए।
So this reflects the Renaissance belief in books as companions of the mind. वो हमारी friends हैं. दूसरा है ornament. तो studies also help in conversation and discourse. आज आपने मेरे साथ अगर जो भी स्टार्टिंग से और गया नहीं, फ्रांसिस बेकन को समझ लिया, कल आप असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द पर्सनालिटी ऑफ फ्रांसिस बेकन, बताओ, तो आपको कितना मजा आएगा बात करने का, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, क्योंकि आपको पता है कि वो कैसे थे, वो क्या था उनका, उनकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आए, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था. तो यू विल एंजॉय, आपकी स्पीच, आपका विजडम, आपका एग्जाम्पल्स सब रिफाइन हो जाएंगे. ऑर्नामेंट, उसमें खूबसूरत सा नेकलेस बन जाएगा. So they make one persuasive and impressive in social and professional communication. And number 3 is the ability कि learning से क्या होता है, आपका judgment अच्छा हो जाएगा, आपका decision making अच्छा हो जाएगा. और जब आप उस learning को real life में apply करोगे, तो फिर क्या होगा, it will strengthen one's ability to handle everything from business to politics to complexities of human affair. आप लोगों ने ऐसे लोग सुने हैं? सुने ही होंगे क्योंकि आप सब लिटरेचर से हो, कि कोई ना कोई हमारी लाइफ में ना ऐसा होता है जो पूछता है, ये इंग्लिश पढ़ के करते क्या हो, इसका यूज क्या है. सुने होंगे ना ऐसे लाइफ, ये पोएट्री पढ़ के क्या करते हो. लाइक माय हस्बैंड विल ऑलवेज से, व्हाई डू यू रीड पोएट्री, व्हाट इज द यूज ऑफ इट. तो ऐसे लोगों के लिए हमारी लाइफ में, हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई मैकेनिकल उसमें काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, उसमें आप क्या कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो बेसिकली. लेकिन जो लाइफ है, हमारी लाइफ इज सराउंडेड बाय थिंग्स ऑफ ब्यूटी, लव, लाइफ, जो जीने की कहानियां हैं, हम सबकी अलग अलग कहानियां हैं, वो सब लिटरेचर में है. तो ये जो आपकी एबिलिटी भी आएगी ना, चाहे आप कोई भी बिजनेस में हो, किसी भी साइंस में हो, वो सब यहीं से आएगा. It will sharpen your judgment. If you've not read, if you're not well read, if you do not know about so many different people in the world, your mind is not open. It's closed still. It's in shackles. So that decision making ability will not come. You will find such people, even it's very evident in their speech, you know. कई बार आपको बहुत arrogant बच्चे मिल जाएंगे. As a student, I'm saying, as a teacher, I'm saying this. तो वो, what happens is, you can understand that वो exposure अभी तक नहीं है. So to handle everything, this ability will come from learning. तो ये triad shows Bacon's balance between private, social and professional values of study. तो ये पहली चीज इन्होंने कही है. दूसरी चीज पे आते हैं, the misuses or excesses of study. I need a minute. Okay, just please wait a minute. I'll be back. Yeah, sorry for that. So next he talks about, अब सोचो क्या मिसयूज हो सकता है स्टडीज का. अब बेकन हमें अगेन 3 पोटेंशियल डेंजर्स की यहाँ बात करते हैं. एक तो ये है कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इन स्लॉथ. अब कई बार हमारे साथ, सबके साथ ऐसा हो जाता है कि हम बैठे, आज मैं ना 3 राइटर्स कंप्लीट करूंगी, फिर मैं बैठी हूँ, कुछ नहीं हो रहा. तो आइडलनेस, कुछ करना ही नहीं, लेज, पढ़ने के टाइम पे वो भी, तो दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, घुस सकता. To use studies merely for ornament and discourse is affectation, वो pretentiousness. अब
कभी-कभी हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा पढ़ लिया और फिर उसके बारे में बस इसलिए पढ़ा ताकि मैं आज ना मेरे वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मैं थोड़ा-सा देख लेती हूँ ज़रा क्या है। और उसके बाद एमलेसली सिर्फ़ प्रिटेंशन के लिए उस पे बात की। मिसयूज़। To rely entirely on bookish knowledge for judgment is the humor of a scholar. This is actually very, very true. आपने कुछ बुकिश नॉलेज ले ली और उसके बाद आप चल पड़े जज करने दूसरों को. That's a humor of a scholar. That should not be there. Main asli experience comes from observation, from the world around you. And if you're not open to that, आपकी अपनी सोच होनी बहुत ज़रूरी है ना. गुड आफ्टरनून आशी. आपकी अपनी सोच नहीं होगी, then you are only relying on other people's perspective. You're not yourself then. So this part shows Bacon's pragmatism. और ये रेनेसां के टाइम पे बात कर रहे हैं. आज के टाइम पे ये बातें करना ईज़ी है. उस टाइम पे ये बातें करना ईज़ी नहीं थी. Knowledge must be used in moderation, with discretion and integrated with experience. और आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे who are very intellectually very good और चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बात करते। और कुछ जिनको ज़्यादा पता नहीं होता, थोड़ा-सा पढ़ा है and they will go on blabbering on it. Third, the practical value and application of studies. तो अब बेकन एम्फसाइज करते हैं कि स्टडीज शुड नॉट रिमेन एब्स्ट्रैक्ट. उसको आपने कुछ पढ़ लिया, आपने आपने मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ ली, मजा आ गया, ये बड़ी बड़ी अच्छी पोएम है, सारी पोएम्स बड़ी अच्छी हैं, कार्पे डिएम के बारे में पता लग गया. उसको अप्लाई किया कभी? कार्पे डिएम, व्हाट इज कार्पे डिएम? सीज द डे. बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना? गैदर ये रोजबड्स व्हाइल यू मे, और कितनी सारी और पोएम्स, मार्वेल की पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, टाइम्स विंग्स आर हरिंग नियर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. Did you ever think of applying it in your own life? या फिर स्लॉ seize the day. Every day gives you an opportunity to do something with your life. कभी-कभी बड़ी, कभी-कभी छोटी opportunities. That's what the poems tell you, right? That seize the day. Seize the opportunities when you have. Take some decisions and make something good of your life, what you want to do. So books versus experience. Books हमें rules, theories दे देती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस से आता है जजमेंट या अप्लाई करना उन चीज़ों को इफेक्टिवली अपनी लाइफ में, या किसी को एडवाइस देना. सो अ वाइज पर्सन यूजेस बोथ. बुक भी पढ़ेगा लेकिन एक्सपीरियंस भी लेगा उस चीज़ का. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग्स. बेकन क्लासिफाई करते हैं रीडिंग इनटू 3 लेवल्स. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम क्वेश्चन बाय द वे. ही सेज कुछ बुक्स सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती हैं. कुछ बीच-बीच से पार्ट्स पढ़ लिए, कैजुअली पढ़ ली, कुछ टचस्टोन पैराग्राफ्स हैं वो पढ़ लिए. सम बुक्स आर टू बी स्वॉलोड. रीड क्विकली लेकिन अटेंशन के साथ. ज़्यादा नहीं चबाना है, क्विकली पढ़ना है. बट सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड. मतलब थॉरली पढ़ना, थॉटफुली पढ़ना एंड देन एब्सॉर्ब इनटू प्रैक्टिस. तो ये जो मेटाफर है ये इलस्ट्रेट करता है सिलेक्टिव और क्रिटिकल रीडिंग को. सारी बुक्स आपको हमेशा अच्छे ही चीजें नहीं देंगी. कुछ हर एक इंसान के अपने अपने व्यूज होते हैं. यू इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू अग्री विद एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यूज. देन he talks about the role of studies in shaping the mind. Studies train the faculties of the mind. पढ़ने से आपका माइंड तो शार्प होगा ही. जैसे कि आप रनिंग करते हो, जिम जाते हो, अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो. रीडिंग करने से आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो. और जो लोग पढ़ते रहते हैं ना अपनी लाइफ में, ऐसा बोलते हैं, इवन व्हाइल दे ग्रो अप एंड दे बिकम ओल्ड, देयर माइंड बिकॉज इट इज ट्रेन्ड, इट रिमेन्स शार्प.
Different disciplines cure different intellectual weaknesses. Now, please, history कहते हैं, history makes men wise. History पढ़ने से you'll be wise because you will learn from the past mistakes, or you will maybe get a very nice knowledge about something and you will apply it into your life. Poetry makes men witty. That's really nice. Imaginative. Mathematics make men subtle. Natural philosophy, science makes men very deep. Logic and rhetoric make men able to contend. Logic पढ़ोगे, rhetoric पढ़ोगे, art of oratory पढ़ोगे, तो आप argument बहुत अच्छा कर पाओगे. So studies are presented as a toolbox for intellectual development, but their effect depends on the character. 3 चीजें थी ना, लास्ट में थी इफेक्ट क्या होता है पढ़ने का, वो डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पे, आप कितना उसको अप्लाई कर रहे हो एज अ रीडर अपनी लाइफ में. ठीक है, तो ये इन शॉर्ट हो गया आपका एसे. मैं एक बार एसे पे आती हूँ. लेट्स जस्ट क्विकली गिव इट अ रीड. या पे अटेंशन प्लीज. स्टडीज serve and for ability. Their chief use for delight, privateness, and retiring. For ornament, it is discourse. For ability, judgment, and disposition of business. For expert, men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. So, to spend much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. They perfect nature, and for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves too much at large, except they be bounded in by experience. ये सब हमने देख लिया. तो क्या कह रहे हैं? Crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them. Please remember this also. जो crafty होते हैं, what they do is they condemn studies, admire करते, लेकिन wise men उसको use करेंगे अपने लिए, apply करेंगे. For they teach not their own use, but that is a wisdom without them, and above them won by observation. So not just books, but if you're going to observe things. Read not to contradict and confute for granted, nor to find tall and consider. क्यों पढ़ना है? To weigh and consider. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but only, and some few to be read wholly and with diligence and attention. Good afternoon, Kanchan. Some books may also be read by deputy and made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books. Else, distilled books are waters, flashy things. ठीक है ना? तो वही बताया कि कुछ बुक्स को कैसे पढ़ना है, कुछ बुक्स को कैसे पढ़ना है, और कुछ बुक्स को कैसे पढ़ना है. कह रहे कुछ बुक्स ऐसी भी हैं which may be read by deputy. उसमें से आपने कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया है, some an extract made of them by others, but that would be only in the less important arguments, the meaner sort of books. Else distilled books are like common distilled waters, flashy things. Reading maketh a full man. Lekin ultimately you have to read. Conference, a ready man. Please remember this also. Reading makes a full man. Conference makes a ready man. And writing, an exact man. And therefore, if a man write little, he had need have a great memory. If he confer little, he had need have a present wit. And if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. Let me take you to this part, writing wala part पे चलते हैं.
ये आ गया ना आपका पर्पस ऑफ रीडिंग, टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कंफ्यूट, जस्ट टू आर्ग्यू, टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ब्लाइंडली आपने एक्सेप्ट कर लिया, टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स जस्ट टू शो ऑफ इन कॉन्वर्सेशन। इंस्टेड यू हैव टू रीड वाई, कंसिडर। फिर बुक्स का टाइप बता दिया इन्होंने। फिर ये वाला पार्ट ऑन रीडिंग बाय डेप्यूटी। कुछ बुक्स मे बी रेड थ्रू समरीज, है ना, आपने एक्सट्रैक्ट ले लिया, मतलब किसी ने उसका एक्सट्रैक्ट बनाया है, कुछ समरी बनाई है या पैराफ्रेज बनाया, कुछ तो आपने वैसे पढ़ ली। बट दिस अप्लाइज ओनली टू लेस इंपॉर्टेंट बुक्स। छोटी छोटी चीजों पे कोई बुक है आपने वो पढ़ लिया, इसीलिए हमने ऐसे खोला हुआ है पूरा बेकन का। सो अदरवाइज डिस्टिल्ड बुक्स कौन सी हुई, इसका निचोड़ निकाल दिया ना, समरी निकाल दिया, they are like distilled water, thin, tasteless, lacking richness. And then the famous triad, ये वाला, reading maketh a full man, conference या conversation maketh an exact man. Then coming to the dependent memory, what he says writing little need a great memory. अगर एक इंसान does not write often, तो उसको अपनी मेमोरी पे रिलाई करना पड़ता है ना। जैसे हम तो अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, कभी कभी मैं आपको क्लास में बोलती हूँ क्लास के टाइम पे नोट्स बना लिया करो, अदरवाइज क्या होगा, क्लास में बहुत सारी और भी चीजें बोली जाती है ना जो पीडीएफ में नहीं होती, देन यू टू रिलाई ऑन योर मेमोरी टू रिटेन नॉलेज एंड इट इज टू मच टू रिटेन। कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन नीड प्रेजेंट विथ। तो अगर कोई है, इफ वन सेल्डम एंगेजेस इन कॉन्वर्सेशन और डिबेट, क्विक थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता है तो आपको पता होगा कितना जरूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि उसने कुछ बोला और मैं उस पर अब क्या बोलूं, दैट्स एसेंशियल। रीडिंग लिटिल नीड कनिंग। इफ अ पर्सन रीड्स लिटिल ही मस्ट हैव क्लेवरनेस और ट्रिकरी टू अपीयर नॉलेजेबल। अब ये तो आपको मिल जाएंगे बहुत, थोड़ा सा पढ़ के आ गए और बस फिर बता दिया कि मुझे तो सब आता है। So Bacon stresses that neglecting one intellectual exercise forces reliance on other faculties. Study is foundational, पढ़ना पड़ता है। फिर ये बात करते हैं स्पेशलाइज्ड वैल्यू ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की, जो हमने बात ऑलरेडी कर ली। हिस्ट्रीज मेक यू वाइज, पोएट्री मेक्स यू विटी, मैथमेटिक्स मेक यू सटल, यू वेरी प्रिसिजन आ जाता है। नेचुरल साइंस विल मेक यू डीप, moral philosophy makes men grave, serious. जब आप moral philosophy and rhetoric make you able to contend, you will have argumentative skills. Key idea क्या है, different disciplines exercise and refine different mental exercises strengthen different parts of the body. Then what is the connection between studies and character? एक Latin phrase लिया है इन्होंने, which means studies pass into or influence character. Learning से हमारी habits, हमारी values, हमारा behavior shape होता है. Bacon emphasizes that no intellectual deficiency is permanent. The mind can be strengthened and refined through appropriate study. जैसे कई स्कूल में हम लोगों को ग्रेड्स पे जज करते हैं ना, बैक बेंचर, पढ़ते नहीं, ऐसा वैसा। अगर आप अपने माइंड को अप्रोप्रिएट स्टडी दोगे, देयर इज नथिंग लाइक एन एवरेज स्टूडेंट और अ डल स्टूडेंट और एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऑनेस्टली। You can always refine your knowledge. Then he gives an analogy with physical exercise. Just as physical exercise targets specific body weakness, है ना, आज मैं abs पे काम करने वाली हूँ, आज मैं अपने legs पे काम करने वाली हूँ। तो जैसे bowling है, body part, कोई किडनी कोई स्टोन है या कुछ है तो आप ये करो, शूटिंग करो फॉर लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग करो फॉर स्टमक, राइडिंग करो फॉर हेड, इस तरह का। Analogy for the mind, intellectual exercises are like physical exercises. The right study remedies mental weaknesses. अगर आपको कभी लगता है कि यार मैं बहुत दुखी रहती हूँ, melancholy है बहुत ज्यादा, मैं खुश नहीं हूँ, I am angry, तो I think if you find the right kind of books, study or observation, you can find a remedy for your
any kind of weakness. Tailored study for mental defects. He also gives this. Bacon gives examples of how to overcome particular intellectual shortcomings, जैसे कि wandering wit. बस आपका दिमाग घूम ही रहा है, आप मैथ्स पढ़ लो, क्योंकि उसमें क्या है, पूरी अटेंशन चाहिए. डिस्ट्रैक्शन हुई तो दुर्घटना भी हुई. डिस्ट्रैक्शन फोर्स, आई थिंक यहाँ पे इनको ड्राइविंग भी लिख देना चाहिए था. आप ड्राइविंग करो अगर मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता. देन इनेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस. अगर आपको नहीं आ रहा डिस्टिंग्विश करना या डिफरेंसेस ढूंढना, तो स्टडी स्कूल में स्कोलास्टिक फिलोसफर्स को पढ़ो. दे डाइसेक्ट आर्ग्यूमेंट इनटू माइन्यूट डिस्टिंक्शंस, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, टू डेवलप वो एनालॉजी, एनालिटिकल सटलिटी लाने के लिए. डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग मैटर्स और प्रूविंग पॉइंट्स. अगर आपको लगता है कि आप अपने पॉइंट्स ही प्रूव नहीं कर पा रहे, आप आर्ग्यूमेंट में कर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको लॉयर्स के केसेस पढ़ने चाहिए. लॉयर्स का जो रीजनिंग है उनसे डेवलप होती है स्किल इन इलस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड आर्ग्यूमेंटेशन. So the key idea is every weakness of the mind has a special receipt. कोई solution होता है अगर आप appropriate study करोगे तो. And practical philosophy behind this section क्या है? Studies are functional and remedial, not merely ornamental. They train the mind systematically, just as exercises train the body. ठीक है, तो ये bowling is good for the stone and rain, shooting for this. B, not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are simini sectors, जो analogy के लिए छोटी छोटी parts में बांटते हैं. If he not be apt to beat over matters and call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer. May have a special receipt. That's it. Of studies. हमें कभी लगता है ना कि एसेस को कौन पढ़ेगा यार, नॉन फिक्शन इज बोरिंग और डिफिकल्ट. इट्स नॉट सो. एक बार आप एसेस में घुसो थोड़ा सा, यू विल फाइंड सो मच विजडम. यू विल फाइंड, अगर आप कोई मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना अपनी लाइफ में, एसेस को पढ़ो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. हेलो आदि, वी जस्ट एंडेड. और कहीं पे भी जाने की ऑनेस्टली जरूरत नहीं होती. इन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी मोटिवेशन, जरूरी नहीं है आप इनके सारे पॉइंट से अग्री करो, बट आई थिंक जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हो. और आई एम श्योर एटलीस्ट अगले एक हफ्ता तो अच्छे से काम करोगे सोच सोच के इसके बारे में, राइट. एंड अभी तो जो मुझे मैसेजेस में आप दिख रहे हो, आप सब तो मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो या रह चुके हो. अगर कोई नया देख रहा है, एंड इफ यू विश टू जॉइन माय फुल कोर्स नेट के लिए या यूपीपीएससी के लिए, गेट इन टच विथ मी. एंड जेकेपीएससी का एमसीक्यू कोर्स इज आल्सो देयर. ऑलराइट. और ये बैकग्राउंड में लंदन है, तो आई थॉट कि बेकन पढ़ रहे हैं तो लंदन बैकग्राउंड में होना चाहिए. बस जहाँ से आप हो, हिमालयन सोल, हिमाचल से ही हूँ. अच्छा, मेरी स्वेटर देख के बोल रहे हो कि हम बहुत ठंड हो गई है. हाँ, 1 वीक कोटा कंप्लीट, फिर नेक्स्ट वीक दूसरा ऐसे पढ़ लेंगे ना. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाइज. आई ऑल्सो मिस ऑल ऑफ यू, कंचन, and I miss you all in the classes because it was so much fun talking with you all. Yes. Thank you and have a good day. I'll try and see you more often in the free life classes. Bye.